वेलकम क्लास 9 अटेंडेंस लगाते हैं अपने नाम के साथ अटेंडेंस लगाइए टुडे वी शैल स्टार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 दैट इज algebraic expression algebraic expressions is the algebraic expression is the combination of variables and constant. Algebraic expression is a combination of variables and constant. What is variable? Variable is a symbol which represent every element of a given non-empty set. Non-empty set means x की वैल्यू empty नहीं होनी चाहिए. x की वेरिएबल की वैल्यू y है अगर वेरिएबल आपका तो उसकी वैल्यू empty set नहीं होनी चाहिए. यानी उसका नंबर कोई कांस्टेंट कोई नंबर वैल्यू पुट करनी होगी. A variable is a symbol which represents every element of a given non-empty set. A variables are represented by x, y, and z. When x, y, z are not to be written, then the variable may be a, b, c. Okay. A constant is a number. Constant is a number which has specific value. Constant is a number which has specific value. For example, 3 is a constant. We have 3 value of 3. 4 has its own value 4. Therefore, combination of variables x plus 6 is equal to 10. And x6 is a 6. But what is x? What's the value of x to make it a 10? Here x is equal to 4. So that the expression 4 plus 6 make is equal to 10. Therefore, here x has the value 4. But in this one case, x plus 7 is equal to 15. 7 is a constant, but x is not a constant. It has some value, different value. What's the different value? When it is to be added in 7 to make it 15. That is 8. Here x is equal to 8. In this case, x was 4. In this case, x is a 8. In this case, x is a 8 to make it 15. 8 plus 7 is equal to make a 15. Therefore, the alphabet which are used instead of different numbers to verify the result is called variable. Okay. Next one is a coefficient. Any constant number multiplied with a variable is called coefficient. A coefficient is a number which a variable is multiplied is said to be coefficient. Is called coefficient. वो नंबर जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो उस नंबर को कोएफिशिएंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल 11x square. 11 is a number. 11 is a number which is multiply x square. Therefore, 11 is a coefficient. The number which is multiplied with the variable is called coefficient. For example, 5x square. 5x square. 5x square. 5 is a coefficient of x square. 5 is a coefficient of x square. Okay. Next one is the algebraic expression. Algebraic expression I have also explained.
Algebraic expression is a collection of constant and variable joining for the fundamental operation. Joining for the fundamental is called algebraic expression, collection of constant and variable joining with the fundamental operation. What are fundamental operation? These are plus, minus, multiply, divide, and root. Root with power or powers is called algebraic expression, collection of constant and variable joined by the fundamental operation is called algebraic expression. For example, 3a plus 5b, this is algebraic expression. 4x square minus 2 over x plus 7 is the algebraic expression. 4a multiplied by 3b. Multiply, the symbol of multiply is fundamental operation. 4a multiply 3b. A is a variable, b is also be variable. 4 is exponent for a, 3 is the exponent for coefficient. 4 is the coefficient for a and 3 is the coefficient of b. In third, next one example, this one 4x square plus xy minus y square divided by 4. This the divided symbol is a fundamental operation. So therefore, variable plus constant are separated by some fundamental operations. Any term, the terms which are separated by operations as a constant and variable is called algebraic expression. Okay, no number of terms algebraic expressions में algebraic expression में number of terms क्या होती हैं? algebraic expressions में अगर जैसे x plus 4 ये एक टर्म है और ये दो टर्म है तो कितनी टर्म्स होगी? दो. और अगर ये प्लस इसको मैं अगर y करते हुए z कर दूं तो कितनी टर्म्स होगी? x प्लस प्लस माइनस से सेपरेट होने वाला each algebraic expression is called term. This is algebraic expression represented by x variable, y variable, z variable. There are three variables x, y, and z. Number of terms are three. There are three terms. Degree of polynomial x raised by 2 plus 3x. कितने डिग्री है? पावर, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स का डिग्री. तो कितनी हाईएस्ट पावर है? 2. तो देयरफॉर इट्स 2 डिग्री. और कितने टर्म्स हैं इसके अंदर? देयर आर 2 टर्म्स. ओके, अब आइए काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नंबर 1 पॉलिनोमियल, number 2 rational, and number 3 is the irrational expression. Number 3 is a irrational. Irrational. Number 1 polynomial, rational, and irrational. Polynomials expressions are, for example, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है. P sum of polynomial of x variables is equal to a naught x n plus a1 x n minus 1 plus a2 x n minus 2 plus and so on a n. यहाँ पे a n x नहीं है, यहाँ पे x की पहली वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई. डिक्रीज होते होते 1 के बाद x की पावर यहाँ पे कितनी दी गई है? ये n से पहले वाली इसकी पावर है n-1. ये यहाँ पे इसकी पावर 1 हो गई और यहाँ पे
इसकी पावर 0 होगी, इतनी डिक्रीज होती गई कि n माइनस एन हो गई। लास्ट में हमने क्या लिख दिया, n माइनस एन। क्या लिखेंगे, n माइनस एन का मतलब है 0, n माइनस एन डिक्रीजिंग पावर आ गई। एस इस तरीके से लिखी जाने वाली एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए इसके अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है, वेरिएबल हैविंग नेगेटिव पावर्स, वेरिएबल की नेगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, वेरिएबल नॉट टू बी इन अपॉन फॉर्म, अपॉन फॉर्म में वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। जैसे 1/x लिख दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। और x रूट में भी नहीं होना चाहिए। क्या क्या है, x वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। अगर उस वेरिएबल का रूट खत्म हो जाता है तो वो आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगी, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या कंडीशन है पॉलिनोमियल के लिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो। यहाँ पे देखिए कहीं भी ऐसी वैल्यू 0 हो गई, n माइनस एन 0 हो जाएगा, माइनस में नहीं हुई आगे, इससे कम डिक्रीज नहीं हुई वैल्यू। अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे है 2x4 प्लस 3x3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 121। अब आप देखें x हमारा वेरिएबल है, इसकी पावर 4 3 2 1, उसके बाद लास्ट में खत्म हो गया, x नहीं है, x की पावर यहाँ पे 0 कहलाए, 0। अब आप देखें इसके अंदर डिक्रीजिंग पावर, जैसे ये इसकी डिक्रीजिंग यहाँ भी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक एक कम होता जा रहा है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। तो इस तरह की एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, अब पॉलिनोमियल के बाद आता है रैशनल एक्सप्रेशन। हर वो अगर वेरिएबल अपॉन में आ जाए, अगर वेरिएबल क्या हो, अपॉन में हो, अगर वेरिएबल क्या हो, अपॉन में हो, अगर वेरिएबल क्या हो, अपॉन में हो, अपॉन में हो, तो वो क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स हैं तो टू एक्स और वाई वेरिएबल है तो टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल होगी। लेकिन यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, ऐसी एक्सप्रेशन जो अपॉन में लिखी जाए। फॉर एग्जांपल x प्लस 1/x, आप देखें x अगर वेरिएबल है तो अपॉन में आ गया यहाँ पे, तो लिहाजा ये रैशनल एक्सप्रेशन होगी। क्या होगी, रैशनल। अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन dx प्लस c, अपॉन में लिखा हुआ x, अपॉन में लिखा हुआ x, लिहाजा ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल नंबर अपॉन में हो तो नहीं, वेरिएबल अगर अपॉन में हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रैशनल होगी। अगर नंबर अपॉन में है तो फिर नहीं कह सकते आप कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, वो वेरिएबल के तहत एक्सप्रेशन होगी। तो वेरिएबल्स अगर अपॉन में आ गया तो वो रैशनल है, अगर अपॉन में नहीं है, लीनियर फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इररेशनल। नेक्स्ट क्या है, इररेशनल। इररेशनल एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको इररेशनल एक्सप्रेशन के लिए इररेशनल एक्सप्रेशन देखें, हर वो एक्सप्रेशन जिसमें बेटे हम रूट में लिख दें, रूट में वेरिएबल आ जाए, अगर रूट में वेरिएबल आ जाए तो ऐसे एक्सप्रेशन को इररेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे x प्लस 1/x, इसको अगर मैं यहाँ पे भी रूट लगा दूँ तो ये कौन सी हो जाएगी, इररेशनल एक्सप्रेशन। ये नीचे भी दोबारा से मैंने बताया, x रूट प्लस 1/x रूट। और अगर इसकी पावर ये इररेशनल नहीं है क्योंकि इसका रूट खत्म हो गया तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका रूट खत्म हो गया, इसका रूट खत्म हो गया। जिसका रूट खत्म हो जाए वो इररेशनल नहीं रहती। जैसे s की पावर 3 मैंने यहाँ पे शो किया है, s की पावर 3 रूट खत्म नहीं हो रहा, इसका रूट खत्म नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये एक्सप्रेशन कौन सी होगी, इररेशनल एक्सप्रेशन है ये। एनी वेरिएबल्स हैविंग
written under radical sign cannot be removed is called irrational expression. जिसकी पावर डेसिमल में बन जाए वो तमाम irrational expression होती है। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर डेसिमल में आ रही है तो वो irrational expression है, और जिसकी पावर होल नंबर में आ जाए वो तमाम के तमाम पॉलिनोमियल होती है। ओके, irrational कौन सी होगी? Irrational expressions are those expressions which are written under radical sign. Radical sign के अंदर जो आ जाए उनको irrational expression कहेंगे, उनको irrational expression कहेंगे। क्वेश्चन पूछना हो कुछ आप बेटे? डू यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? अगर नहीं समझ, अगर समझ आ गई तो यस लिखिए। ओके, समझ आ गई। नेक्स्ट वन, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू टर्म्स डिवाइड किया गया है। अगर एक टर्म हो, ये तो एक टर्म दी गई है, ये क्या है? एक टर्म दी गई है, सिर्फ एक टर्म दी गई है, ये एक ही टर्म है, इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री के अंदर वैलेंसी पढ़ी है, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, जिसकी वन वैलेंसी होती है। यहाँ पे अगर एक टर्म है तो उसको कहेंगे मोनो। पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। उसके बाद सेकंड है जिसमें दो टर्म्स हो, देखें 3x माइनस 4y, दो टर्म्स हैं, therefore it is called बायनोमियल। क्या कहलाएगा? बायनोमियल। इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें एक ये टर्म है, माइनस के बाद दूसरी टर्म आ गई, तो ये भी बायनोमियल कहलाई। अगर तीन टर्म्स हो तो उसको ट्रायनोमियल कहेंगे, एक, दो और या तीन। एनी पॉलिनोमियल which have three term is called trinomial। इसके बाद मल्टीनोमियल, 3, 4, 5, 6 इस तरह जितने भी हो वो तमाम को क्या कहेंगे? मल्टीनोमियल। क्या कहेंगे? मल्टीनोमियल। अब पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री बताया जाएगा। पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री जब हम बताएंगे तो उसमें बेटे हमें देखिए x की पावर 2 प्लस 3x y की पावर 4 प्लस z की पावर कुछ नहीं लिखी। तो अब आप देखें यहाँ पे x की पावर क्या है? 2। हर टर्म की पावर को देखें। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो इन दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड करके लिखना होगा। तो 4 प्लस 1 क्या आ गया? 5 आ गई। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, किसी भी टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर, अगर पॉजिटिव वेरिएबल की पावर को ऐड करके जो नंबर आएगा वो उतने डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, किसी भी हर टर्म की पावर को देखें। फर्स्ट में देखें 2 है, सेकंड में दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड करें तो 5 आ गया। यहाँ पे क्या 1, ये इसके कितने हैं? 2। तो हाईएस्ट नंबर क्या आ गया पावर का? 5। तो ये कहेंगे दिस पॉलिनोमियल इज ए 5 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या है? 5 डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्या है? 5 डिग्री पॉलिनोमियल। इस तरह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम मालूम कर सकते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है। इस तरह ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको देने लगा हूँ, a3 माइनस b2 होल पावर 2 और इसको मैंने रूट में लिख दिया। तो अब अगर स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आंसर आएगा? a क्यूब
माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? इसमें पहले नंबर में इसमें इसके अंदर कितने डिग्री है? कितने डिग्री है? 3। इसके इसमें कितने डिग्री है? ये 2 डिग्री है। ये कितने? 3 डिग्री है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? ये 3। तो देयरफॉर इट इज ए 3 डिग्री पॉलिनोमियल। 3 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि ये स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल होकर हमारे पास एक्सप्रेशन लीनियर फॉर्म में आके पॉलिनोमियल बन गया। आगे समझ? तो ये इसका तमाम तमाम जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो एक्सरसाइज 4.1 इन डेफिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर्म में पूछा जाता है। ये इसमें खास तौर पे मैंने आपको लास्ट का बता दिया। 2 मिनट रह गए, अटेंडेंस लगाइए अपनी। 2 मिनट रह गए हैं, अटेंडेंस लगाइए। 2 मिनट रह गए हैं बेटे, अटेंडेंस लगाकर आप आगे चलेंगे। मैंने आपको जब एक एक्सप्रेशन बताई पॉलिनोमियल का होता है, पॉलिनोमियल के बाद जब एक्सप्रेशन की पॉइंट बताई, पॉलिनोमियल, रैशनल, इरैशनल, इनको डिफाइन किया गया विद एग्जांपल। उसके बाद फिर आपको उनको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल की पॉइंट बताई गई है। पॉइंट में आपको मोनोमियल बताया गया, अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल होता है, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल होता है, तीन हो तो ट्राइनोमियल, फिर मल्टीनोमियल। यानी ट्राई तमाम जितनी भी आपकी 3, 2, 3, 4, 5 टर्म जो है वो तमाम मल्टीनोमियल कहलाएंगे। जैसे मतलब 3 टर्म वाले जो इक्वेशन है वो भी आपकी मल्टीनोमियल भी हो सकती है, उसको आप मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं। लेकिन आप 3 तक कह सकते हैं ट्राइनोमियल तक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। टेट्रानोमियल नहीं, पेंटानोमियल नहीं, उसको मल्टीनोमियल का नाम। उसके बाद डिग्री आपको मैंने बताया। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे एक्सरसाइज के मतलब। आपका टाइम जो है खत्म हो गया है।